Sunday Guardian Roundtable. Today we're going to be talking about the by-elections in UP. Not so much the by-elections themselves per se, but of course we'll want to know what is at stake here, what are the issues at stake here. But more than that, the larger impact it has on the national narrative. I'll tell you why. With the result of the by-election, supposing the Samajwadi Party wins or gets the upper hand, what impact will it have with the vis-a-vis the Congress within the India alliance and also vis-a-vis Yogi Adityanath? Will his tenure then be safe? Because don't forget, the state is going in for elections in 2027. What happens if Yogi Adityanath sweeps or gets the upper hand? Then at least will his staying be assured, or will it send tremors to the BJP at the center and they'll look for excuses to remove him? Because as we know, at least the unofficial truth is that the central BJP is a tad unhappy with Yogi's rising cloud. There are some within the BJP who would actually like to see him cut. Did that infighting actually lead to the disastrous Lok Sabha results for the BJP? And what does this mean for Akhilesh Yadav's position within the India alliance? Because Rahul Gandhi so far has been portraying himself as the leader of opposition. In a recent interview to me, Akhilesh Yadav, when I asked him if there is a shadow cabinet within the opposition, then who will be Rahul will be the prime minister, what will be your role? So he turned around and asked me, why should there be only one prime minister face? एक ही प्राइम मिनिस्टर फेस क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? तो इसका मतलब अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की लीडरशिप को इतना प्लेटर पे नहीं देने के मूड में, और वो अभी साबित भी हो गया। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूनिलैटरली सीट्स अनाउंस कर ली। कांग्रेस हैड नो चॉइस, उनको 2 सीट्स मेरे ख्याल ऑफर करी, जो गाजियाबाद और कैरा, जिनको उनको पसंद ही नहीं थी। तो कांग्रेस को फिर चुनाव से ऑप्ट आउट करना पड़ा। क्या है पॉलिटिक्स, अंदरूनी पॉलिटिक्स एंड vis-a-vis each other, इसके बारे में मेरे पास आई हैव अ डिस्टिंग्विश्ड पैनल। Joining me on the show is Udayveer Singh. He's an MLC and a national spokesperson for the Samajwadi Party, and someone who actually monitors elections also for the Samajwadi Party. He's strategist. We have Surendra Rajput, national spokesperson, political analyst, someone with whom I've had a lot of informal conversations. He's with the Congress. And Shantanu Gupta, he's the author of the biography on Yogi Adityanath, and someone who is very, very well versed in what is happening within the BJP camp. But Udayveer, I'll begin with you first on what is happening within the Samajwadi Party, the India Alliance, and how confident are you कि आप जो लोकसभा में रिजल्ट्स थे वही आप इस बाईपोल में रेप्लिकेट कर सकते हैं? First of all, I want to clarify that you have made a statement that Samajwadi Party was giving only 2 seats and which were not confirmed, unconfirmed type seats. That's not true. What Samajwadi Party has offered, there were seats which were confirmed that Congress would have won and now Samajwadi Party will win. That was Phulpur. It was offered, but it was the internal decision of the Congress, which was taken and communicated by their senior-most leader, Rahulji, to Akhileshji, that this time they will support us and they will not field their candidates. Our party has requested them to contest. And they were fair, I won't say there were few seats or less seats, but it is an understanding between Congress leadership and Samajwadi Party leaders for whatever political understanding they made. And it is not a forced thing. Our party was saying, you take seats and contest. And Rahulji said, no, brother, you contest, we will not. We will not contest. This time we will support you. So you're saying there's no ill will, maybe not between Rahul and Akhilesh, लेकिन जो आप Congress district PCC chief है, he is very unhappy. A lot of Congress local people are unhappy. Whenever आप भी जब भी alliance बनाएंगे, हाँ जी, तो निश्चित तौर पे ग्राउंड की लीडरशिप चाहेगी कि उसकी सीट बच जाए। तो ये सब इश्यूज आते हैं और अलायंस के दौर आज से नहीं है। अलायंस का दौर तो 89 से चल रहा है और वेल सेटल हो गया है, सब जानते हैं। कुछ सीटें हम लड़ेंगे, कुछ सीटें वो लड़ेंगे। और आज एग्जाम्पल है, कांग्रेस 80 लड़ती तो क्या 6 जीतती, हम अकेले लड़ते तो क्या हम इतने जीतते। तो जब हमारे मैटर लड़ना ही है या जीतना है, अगर जीतना है तो फिर अलायंस भी करने पड़ेंगे लोगों को। मैं जो बात आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई झगड़ा वाला इशू नहीं। ठीक है, कुछ बातें आएंगी ऐसी 19-20, कहीं कोई अलायंस बन पाएगा, कहीं लोकल लीडरशिप मानेगी नहीं माने, कहीं हमारा इंटरनल एनालिसिस होता है कि अलग लड़ने से हम दोनों का अच्छा है या नहीं अच्छा है। ये सब बातें पार्टी स्तर पर तय होती है। तो पहले तो मैं ये बात आपसे क्लैरिफाई करूँ। दूसरी बात आप कुछ पूछ रही थी। दूसरी बात, आप कितने कॉन्फिडेंट है जितना कि आप ये लोकसभा का जो, देखिए मैं जितना कॉन्फिडेंट हूँ वो तो बात की बात, क्योंकि बाई इलेक्शन होता है
उन सीट्स पे जो पहले से ही जिनका बायोग्राफी, जिनका अभी रिसेंट चुनाव का रिजल्ट, बहुत सी चीजें स्टेब्लिश होती हैं, पर्सनालिटीज भी स्टेब्लिश होती हैं। हम तो पूरा कॉन्फिडेंट हैं ही, और हर आदमी कहेगा। बीजेपी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को चेंज किया, अपने अलाइज को ट्रस्ट नहीं किया। अलाइज कह रहे हैं धोखा हुआ हमारे साथ, तो अलाइज ये थोड़ा कह रहा है कि हमने छोड़ दी। और बीजेपी जिस तरह से एक मिल्कीपुर से पीछे भागी, फिर ये पूरा चुनाव इस दौर में जाके कैंसिल कराया। अगर ये चुनाव, अगर सारे त्योहार तीज सब कुछ पहले से कैलेंडर में है, और अक्टूबर 16 अक्टूबर की शिकायत वो दिया था रिक्वेस्ट बीजेपी ने, 4 दिन 5 दिन में हो जाता। कोई ऐसा इशू थोड़ा है कि 20 तारीख को इलेक्शन कराने में हमें कोई दिक्कत। तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी बहुत दिक्कत में है। कल मुख्यमंत्री परसों गए, कल चुनाव आयोग से फैसला आ गया, और चुनाव आयोग की कितनी लेजिटिमेसी बच रही है ये खुद एक चिंता का विषय है। बीजेपी जो जो कह रही है, नए नए नारे दे रही है, प्रधानमंत्री कुछ और नारा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और नारा दे रहे हैं। तो जो आपसी मामला है, प्रधानमंत्री को जल्दी से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हटाना है, मुख्यमंत्री को जल्दी से दिल्ली पहुंचना है, तो ये सारे इश्यूज हैं। बीजेपी को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, और इन सीटों पे समाजवादी पार्टी की अच्छी तैयारी है, और पहले से भी अच्छा लड़ते रहे। तो मुझे लगता है कि एक एक सीट के लिए जो सीटें बीजेपी अपनी कंफर्म मानती है, उन सीटों पे भी बीजेपी की बिल्कुल हार निश्चित है। अच्छा, राजपूत जी, और अलायंस पार्टनर्स वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने एक तौर से साफ भी कर लिया कि ऑल इज वेल विद इन द अलायंस। लेकिन इज ऑल रियली वेल? कांग्रेस पार्टी का को लोग उन हैंडीकैप नहीं मान रहे हैं उनके अलायंस हरियाणा के बाद, इसीलिए शायद इतना आपको हरियाणा का चुनाव आया और अगले दिन अखिलेश यादव ने सीट्स अनाउंस कर दी। प्रिया जी, आप लोगों की आदत है पानी में लाठी मारने की, मारते रहिए। और हम लोगों की आदत है कि हमारा अमलगमेशन पानी की तरीके से है, हम अलग नहीं होंगे। ये अपने आप में सच है। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, जैसा उदयवीर जी ने कहा, हम पूरी तरीके से सहमत है। लोकल लीडरशिप को जो भी इश्यूज होते हैं, हम इस चीज से इनकार नहीं करते, होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी तैयारी करता है, हर आदमी लड़ने के लिए बात करता है। लेकिन जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल क्या नाम श्री अखिलेश यादव जी ने जो तय कर लिया, उस पर हमने एक लाइन टो की। और आपको याद होगा कि फूलपुर से एक हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ने प्रत्याशी अपनी घोषित करी, उसने चुनाव का फॉर्म भरा एज ए इंडिपेंडेंट, और हमने उसको पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये बड़ी स्पष्ट हमारी नीति है कि हम अपने अलायंस के साथ में, अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में इंडिया गठबंधन को चट्टानी एकता के तरीके से मजबूत रखे हुए, नो क्रैक्स। बाकी हाँ, फूलपुर से कांग्रेस क्यों नहीं लड़ना चाह रही थी? फूलपुर इज अ प्रेस्टिजियस सीट इन टर्म्स ऑफ लेगेसी सीट भी है आपकी। ये किसने कहा? हम तो 9 की 9 सीटें उदयवीर जी ने कहा कि आप नहीं लड़ना चाह रहे थे। मैं आपको बताऊं ना कि ये सारी की सारी सीटें हम लड़ना चाहते हैं, और हम लड़ रहे हैं। परिस्थितियों में हमने इंडिया गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन में सिर्फ सिंबल ही तो समाजवादी पार्टी का है। सिंबल समाजवादी पार्टी के अंडर में इंडिया अलायंस पूरी ताकत से, कांग्रेस भी अगर वहां पर जब इंडिया अलायंस जीतेगा तो कांग्रेस जीतेगी ना। अगर कोई दूसरी पार्टी जीतती है तब कांग्रेस हारेगी। अब बात समझिए। तो आप बड़े लार्जर फाइट लड़ रहे हैं आप, मतलब के? निश्चित तौर पर, क्योंकि आप बहुत स्पष्ट जान लीजिए, एक बड़ा पुराना सा नारा था ये, उदयवीर जी की पार्टी के किसी कवि ने गाना बनाया था कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। आज की डेट में हमारे पार्टी के हित अलग रह गए। अब आप देखिए ना, कल परसों से कैसा इन लोगों ने मजाक बना दिया है संविधान का। पहला मजाक इन्होंने बनाया कि साहब खाता ना बही, जो मोदी चचा कहें वो सही। पहले 13 को चुनाव थे, अब 20 को चुनाव कर दिए इन्होंने। भाई 25 को कर लो, 30 को कर लो, हारोगे तो हारोगे। नंबर 1, त्योहार का था तो पहले ही आपको कैलेंडर देखना चाहिए था। यानी चुनाव आयोग को ये बताना चाहते हैं कि अब तक चुनाव आयोग जो था केंद्र सरकार की जेब में था, अब चुनाव आयोग राज्य सरकार की भी जेब में आ गया है। मोदी का, योगी जी दिल्ली जाते हैं, वो चुनाव आयोग का। दूसरा जो सबसे बड़ा इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया, आज इन्होंने कल शाम को कैबिनेट में फैसला किया कि डीजीपी जो है अब उत्तर प्रदेश की सरकार ही डिसाइड करेगी, यूपीएससी को पैनल नहीं जाएगा।
आप देखिए ये संविधान को दूसरा तोड़ने का वो। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोगों में जवाब देना होगा, आरक्षण के समर्थकों में, जाति जनगणना के समर्थकों में और संविधान के समर्थकों में जवाब देना होगा कि ये आप संविधान को जो नोच रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है, लेकिन अब संविधान को नोच नोच करके निष्प्रभावी करने की जो कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का या मनुवाद जो आप लाना चाहते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त कर रही है, आप इस चीज को देखिए, इसको सारा वर्ग देख रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसका शायद चश्मे का नंबर बदला हुआ है, दृष्टि दोष है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, किसी न किसी दिन जब उनके ऊपर आफत आएगी तो हम लोग संविधान प्रदत्त तब भी उन लोगों के साथ खड़े होंगे। वो आज की डेट में जो विरोधी पक्ष के का जो माई बाप होना चाहिए था जो मीडिया, आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो सत्ता का मानस पुत्र, सत्ता की गोद में, सत्ता की अवैध संतान के टाइप में बैठा। मीडिया की डिस्कशन हम बाद में करेंगे आपसे, वो मुझे तो कहना तो पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में भी हुआ, हर चीज में तो आप मीडिया को नहीं ब्लेम कर सकते। नहीं लेकिन शांतनु जी, मैंने हरियाणा में कोई मीडिया को ब्लेम नहीं किया। हरियाणा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे हैं हम लोग, और गलतियां होती हैं तो सजा मिली। उन गलतियों से हमने अगर सबक लेकर के महाराष्ट्र हम जीत जाएंगे तो मीडिया हरियाणा को भूल जाएगा। Shantanu, we don't have a BJP spokesperson, and de facto, some of the, since you know the BJP so well, I'm not saying defend them, but just explain what is happening within the BJP politics. How important is this election for Yogi Adityanath? और जैसे कि इन्होंने बोला about the alliance, are you convinced कि ये कांग्रेस अपने आप happily sit out कर रही है, या उनके पास अखिलेश यादव में ज्यादा option नहीं दिया था, they had to just sit out? I think coming on bypolls one, this is an interesting bypoll. See, for BJP, you must have seen every election, they take it very, very seriously. Be it Hyderabad municipal election or a Manipur election to UP election to national election, right? They take it with full force. तो BJP हर चुनाव को बड़ा करके लेती है. तो उस तरह से बीजेपी इस चुनाव को भी उतना ही सीरियसली ले रही है. इस चुनाव के अगर आप प्रीवियस रिजल्ट देखें, 10 सीट पे चुनाव है, मिल्कीपुर का भी चुनाव भी अभी तो हो ही जाएगा. तो 3 सीट भाजपा के पास थी, 7 सीट एक तरह से सपा के पास थी. एक आरएलडी की सीट है, लेकिन वो भी सपा कॉम्बिनेशन के साथ आरएलडी की सीट थी. तो ये 3-7 का है. अगर 3-7 ही रिजल्ट आता है तो स्टेटस को है, क्योंकि 22 में इलेक्शन हुआ है, बहुत समय पुराना इलेक्शन नहीं है. अगर 4-6 होता है एडवांटेज बीजेपी, 5-5 होता है एडवांटेज बीजेपी, 6-4 होता है सुपर एडवांटेज बीजेपी, राइट? तो 3-7 के ऊपर टेक्निकली एक भी सीट भाजपा जीतती है तो एडवांटेज गलत है, पक्की सपा की सीट है. तो आई थिंक ये मैं ऐसे देखता हूँ चुनाव को. जब से अखिलेश यादव ने पार्टी छीनी है, मैं उस पार्टी छीनना ही कहूंगा, जब से उन्होंने पिताजी को पार्टी छीनी, चाचा जी को लात मार के भगाया, उसके बाद से ही इज लूजिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन. उन्होंने 14 हारा, उन्होंने 17 हारा, उन्होंने 19 हारा, उन्होंने 22 हारा, 24 तो नहीं हारा अभी तक. मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने ग्राम पंचायत हारे, उन्होंने सारी म्युनिसिपल हारी. 24 में खटाखट चल गया. कांग्रेस 24 में संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा, वो झूठ चल गया, राइट? किसी को पता है कोई रिजर्वेशन नहीं गया, कुछ नहीं हुआ. लेकिन वो झूठ बार बार चलेगा क्या? बिहार में भी वो चला था एक बार. 2015 में उन्होंने भागवत जी की स्पीच को टेढ़ा मेढ़ा करके बोला था, तो चला था वो. लेकिन आई डाउट वो झूठ बार बार चल पाएगा. जनता देख रही है. पहली बात ये. दूसरा, जो ये अलायंसेस हैं, देखिए आपको पता है टोटली अननेचुरल अलायंसेस है. हमने सुना है कांग्रेस को कहते हुए कि भाई हु इज अखिलेश वखलेश, राइट? हमने अखिलेश जी को कहते सुना है, ये कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, उसके झांसे में नहीं आना. ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप से कहा गया है. अखिलेश जी का बर्थडे हुआ अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने पोस्टर लगाए जिले जिले में, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई. आपने खुद ही कहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि दूसरा नाम क्यों नहीं हो सकता. तो जैसे ही वो बड़ी पार्टी बने, शायद समय तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ही इज सीइंग हिज नेशनल पोजीशन. खुद सोचिए, वाई विल अखिलेश जी की बैटल ग्राउंड क्या है? अखिलेश जी की बैटल ग्राउंड है यूपी, मतलब यूपी विधानसभा. वो वहां पे योगी जी से टक्कर, वो छोड़ के क्यों भाग गए पलायन करके? वो तो पलायन करके सेंटर में पहुंच गए. वहां पे उनको तो टीवी स्पेस भी नहीं मिलता, इतनी सी बाइट मिलती है, कभी बोलने को मिलता है, इतनी बड़ी संसद है. यहाँ पे उनका न्यूज़ एक्स नहीं देखा, न्यूज़ एक्स में अखिलेश को बहुत टाइम मिलता है. यहाँ पे नहीं, मैं कह रहा हूँ संसद में जहाँ पे उनकी स्पेस है, वर्सेस विधानसभा में रोज योगीनाथ और अखिलेश की जो टक्कर होती थी, वो टीवी में आती थी, उनकी फुटेज मिलती थी. वो ये छोड़ के क्यों भागेंगे? मतलब वो अपने लिए कोई बड़ा फील्ड छोड़ रहे हैं. उनको लगता है जब तक योगी जी हैं तब तक मेरा तो कुछ यहाँ दाल गलने वाली नहीं है. 100 सीट अगर आ जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है. सो कैन आई ट्राई नेशनल पॉलिटिक्स? तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में अपना हॉबनॉबिंग कर रहे हैं. इस तरह से मैं देखता हूँ. वर्सेस बीजेपी, देखिए कि योगी अमित शाह में लड़ाई है, योगी मोदी में लड़ाई है, ये केवल चटपटी खबरें हैं, राइट? इससे क्लिकबेट मिलती है. अगर
आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द मोदी अमित शाह बीजेपी इज। अगर किसी को हटाना होता तो एक दिन लगेगा। आपने आपने योगी आदित्यनाथ की शपथ देखी? आपने योगी आदित्यनाथ की 2022 की शपथ देखी? दैट शपथ हैपेंड इन अ स्टेडियम। 1 लाख लोग। क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने आप प्लान करी थी? पार्टी प्लान करती है वो। हरियाणा में चार रैली मोदी जी की, 14 रैली योगी जी की होती हैं। वो योगी जी ने अपने आप प्लान करी होगी। पार्टी प्लान द रैली। मणिपुर से लेकर तमिलनाडु में इलेक्शन होता है, योगी गोज देयर एज वो क्या योगी जी अपने आप पहुंच जाते हैं वहां पे? अपने आप नहीं पहुंचते, पार्टी प्लान से। तो ये कहना कि वो इसको पीछे है, ये इसके पीछे है, आई थिंक ये चटपटी खबरें, क्लिकबेट मिलता है, दैट्स ऑल। उससे थोड़ी थोड़ी But, हम तो राजनीति में गॉसिप की हैबिट है, तो वो गॉसिप को थोड़ी हवा देने में मजा आता है सब। we'll come back to Yogi and this I'm not 100% convinced, but Udaybir wants to come in. Haji. देखिए, पहले बात तो शांतनु जी का झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने जो बोला, इतना झूठ बोला कि मुझे थोड़ा टाइम तो इनके झूठ को बताने में लगेगा। इन्होंने कहा 3-7 था, ठीक, 4-7 था, 4-7-11 होता है सर, 4-7-11 हो जाता है सर, 10 सीट 4-6 था, 4-6 था। आप तो गणित अरे गणित बीच की में मत गड़बड़ बोलिए, करते हैं। जैसे शांति से मैंने सुना वैसे सुनिए। नहीं आप बीच में कर नहीं, रहे थे। मैं नहीं, आपका मैथ ठीक तो है, ठीक कर ठीक दूंगा। है, आप ठीक है, 4 ठीक है, बोलेंगे तो let him 10 say. बोलेंगे तो आप इतना तो सुनिए। But ये it's a 4-7 rhetorical होगा और thing, आपके Shantanu. भारत Shantanu. की It's not a पार्टी की math कैंटीन में thing, होता it's a होगा। rhetorical भारत thing. में 4-7-11 होता है, 4-7-10 आपकी कैंटीन में होता होगा। 4-6 था। आपको पता होना चाहिए, मजमा में निषाद पार्टी बीजेपी के अलायंस में थी, फूलपुर में बीजेपी थी, गाजियाबाद में बीजेपी थी, खैर में बीजेपी थी, हो गए 4। और मेरा आपके साथ चला गया लोकदल, तो लोकदल को आप 0 मानते हैं या उसकी सीट जीते हुए विधायक को गिनते नहीं है। आपके साथ बीच में मत बोलिए, सर, मैं अपनी बात Shantanu, कर रहा let him हूं, finish. Yeah, that is true. Let Don't him comment. finish. फिर आप he had raised his hand. अब उनको बोलने ठीक है। दीजिए. तो I'll come पहली back बात to तो you. टेक्निकली 5 विधायक बीजेपी के पास है, 5 हमारे पास, ठीक। एक बात, आज 5 विधायक जो जीते हैं, जिनकी सीट पे चुनाव हो रहा है, वो बीजेपी में हैं। और तो ये 3-7 जो बता रहे हैं वो 5-5 है। ये हार की मेंटेलिटी होती है, पहले से ही बताने लोगों। हमारी तो कम सीटें थी, 3 भी जीत गए, तो वी आर इन नो लॉस, नंबर 1। दूसरी बात, इन्होंने कहा बीजेपी सब चुनाव सीरियसली लड़ती है। यूपी के पूरे चुनाव में योगी आदित्यनाथ मन से कह रहे हैं कि मेरी चली नहीं, मेरे हिसाब से टिकट बांटे नहीं गए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कभी नहीं कहा योगी जी ने सर। एक स्टेटमेंट चला के दिखा दीजिए। नहीं, बीच में मत बोलिए, मैं अपनी चला बात दीजिए कर ना रहा हूं। स्टेटमेंट। आप झूठ बोल के निकल Shantanu, let जाएंगे, him 4 speak. 7 को 11 I'll come बोलेंगे। back to you. Let him तुम finish. I लगातार will झूठ come बोल back रहे हो, to मैं you. तुमको बता रहा हूँ। दूसरी नहीं, बात, इन्होंने पर्सनल कहा कमेंट्स अलायंस में ग्रे, आई कांग्रेस डोंट को वांट टू पार्टिसिपेट इन कांग्रेस को सच स्टूपिड क्रिटिसाइज डिबेट्स ना। करते हैं लोग, वो पर्सनल कांग्रेस को कमेंट्री कर रहे क्रिटिसाइज हैं, करते झूठ हैं। बोल रहे हो, बीच में झूठ मत बोल रहे बोलिए, हो। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अगर डिबेट का दादागिरी डोकर मत दिखाइए यहाँ पे, दादागिरी आपका मत जब मौका दिखाइए, आएगा आप दादागिरी बोलिए। अपने ऑफिस में दिखाइएगा। नहीं नहीं, Okay, I'm ऑफिस going to नहीं take है। a break and It come is back my and come right. back to Uday. It is Uday, my I'm right. going to take नहीं, a break and come let back to me you. complete. Let me complete. Let me No, complete. I'm coming back with a नहीं short नहीं, break. let me complete बात ये अच्छा, नहीं complete. कि कोई भी हल्ला करके जो है डिबेट करिए। दिस इज नॉट द वे। मैं जो कह रहा हूँ, इनका कहना है अलायंस में रोज बोलते हैं कि योगी जी वो कांग्रेस तो चालू पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर इनके अलायंस में है, लोकसभा 24 7 लड़े हैं, 17 में 7 लड़े थे। कहते हैं मोदी तो सबसे बड़ा झूठा है देश का, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं योगी आदित्यनाथ से बड़ा झूठा कोई नहीं उत्तर प्रदेश में, इनको भीख मंगवाऊंगा कटोरा लेके। ऐसे लोग को साथ रखे हैं Okay. और हमारे स्टेटमेंट को सीरियसली ले रहे हैं। तीसरी बात, टीवी स्पेस, समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा स्पेस समाजवादी पार्टी को ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली मिलता है। तो अब मैं तो आगे तब बोलूं जब ये कोई सही बात बोले। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो डिबेट कैसे चले आगे। अब आप मुझसे सवाल चलिए। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पहले ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद आई विल कम बैक एंड कंटिन्यू द डिबेट. Hello and welcome back to the NewsX Sunday Guardian Roundtable. We are here discussing the UP by-polls, also the larger impact, because UP is not just any state. UP is the state that sends prime ministers and decides the national narrative. So quickly before the break, Udayveer, we were talking about this thing, but आगे आपको क्या लगता है कि how important is it for Akhilesh Yadav to win? How important is it for Yogi Adityanath to win this election? क्योंकि ये इसमें सरकार गिरेगी तो नहीं, मतलब पर ऑप्टिक्स के लिए कितना जरूरी है? ये भी गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। बाई इलेक्शंस में सरकार नहीं गिरती, सब जानते हैं, लेकिन पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के योगी की नाक का सवाल है, योगी के सर्वाइवल का प्रश्न है। बीजेपी को डिसीजन लेना है कि ये रहें कि नहीं रहें, ये हम नहीं कह रहे, ये सारे लोग कह रहे हैं। कितना सच है झूठ है आप जानिए। हमें तो देखिए, हम 17 से चुनाव लड़ रहे हैं। 17 में जो वोट शेयर समाजवादी पार्टी का था, 12 में जो था वो 17 में कंटिन्यू किया, सीट कम आई। 17 में जो था 19 में उससे ज्यादा बढ़ा, लोकसभा सीट उतनी आई। 22 में विधानसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर अपने हाईएस्ट था, सीटें भी
आई, लेकिन उतनी नहीं आई कि जितनी हम सरकार बना लें। और 24 में वो वोट शेयर बढ़ के, हमारा अपना रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड वोट परसेंट मिला और सीटें भी मिली। तो समाजवादी पार्टी लगातार अपनी स्पेस को बढ़ा रही है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को स्वीकार कर रही है और इश्यूज पे कंटिन्यू कर रही है। हम काम बोलता से शुरू किए थे, आज भी हम बात करते हैं तो योगी का फेलियर कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, और हमने जो काम किए उनकी बात करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को प्रॉब्लम होती है कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, वो कहेंगे बटोगे तो कटेंगे, कभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें कि ये हमारा घटता हुआ जनाधार हम रोक लें। इसलिए ये चुनाव बहुत सीरियस है हमारे लिए, और हमारे इश्यूज वही हैं। हमको तो सबको साथ लेके चलना है, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान, ये चीजें आज भी हैं, कल भी थी, और उन्हीं को लेके आगे चल रहे हैं। इसलिए मेरा भरोसा है जो जनता का रुझान है वो बढ़ेगा। ये तय नहीं कर पा रहे कि ये किस विषय पर रहें, कौन सा मुद्दा चलेगा। ये टेम्परेरी एक बाय करते हैं इश्यूज, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और फिर बदल जाते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा कॉन्फिडेंट है, हम उन्हीं इश्यूज पर हैं। हम जनता के रोजी रोजगार और उनके भलाई के मुद्दों पर हैं, समाज को एक करने के मुद्दे पर हैं, सामाजिक न्याय दिलाने के मुद्दे पर हैं। और जो इस ठगना चाहते हैं, जेजेपी के साथ सरकार चलाई, लास्ट में जाके जेजेपी को डंप कर दिया, पार्टी खत्म कर दी। तो इस तरह के राजनीतिक ठग जो हैं, जो साथ तो लेते हैं लेकिन ओन नहीं करते। हम कोई अलायंस खुद नहीं छोड़ते, कोई छोड़ना चाहता है छोड़ दे, उसकी अपनी इच्छा। कुछ लोगों को सरकार में रहने की जल्दी थी, ठीक है जाइए आप, हमें कोई दिक्कत थोड़े। तो समाजवादी पार्टी पूरा कॉन्फिडेंट है और जमीन पे काम कर रही है और जनता के इश्यूज पे काम कर रही है। राजपूत जी, समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट है, एंड एंड ऑफ द डे अगर जीतेंगी तो फिर क्या ये अलायंस की जीत दिखाई जाएगी या समाजवादी पार्टी की, या योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर पे स्टेक है? महाराष्ट्र में भी इट इज मोर द अलायंस, तो इसमें कांग्रेस थोड़ा सा नैरेटिव में मिसिंग हो रही है। नहीं, जस्ट टू ऐड ऑन, एक मिनट बस 10 सेकेंड्स जल्दी से। हाँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम ओन कर रहे हैं इंडिया अलायंस। आज अखिलेश जी की मीटिंग है गाजियाबाद में, इट इज ए वर्कर मीटिंग ऑफ समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस बूथ वर्कर्स टुगेदर। तो बात ये नहीं है, महाराष्ट्र में सब कह रहे हैं अलायंस नहीं हो पाया। अरे हमारा नहीं हो पाया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आसमी के खिलाफ नवाब मलिक लड़ रहे हैं अजीत पवार गुट से, और भाजपा भी लड़ रही है। तो या तो उन्होंने टैक्टिकली ये एक दूसरे के सामने प्लेस किए, या तो उनका भी अलायंस नहीं हो पाया। तो ये एक तरफा जो एनालिसिस करते हैं लोग, वो इशू है। अलायंस साथ है, अलायंस जीत रहा है, अलायंस आगे बढ़ रहा है। चलिए, अलायंस आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस कहाँ जा रही है राजपूत जी? 2-3 चीजें हैं। पहले तो मैं शांतनु भाई को एक चीज कह दूं कि शांतनु भाई की मैथ बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे की गलतियां पकड़ने में। पहले भी अच्छी थी, ये संगत खराब हो गई इनकी। ऐसे संगत में रह गए कि अब इनको मैथ भी भूल गए ये लोग भूल गए कि हमारी 4 सीटें थी, 5वीं आई थी। ये लोग मतलब अब 3 सीटों पर ही रह गए। तो ये अपने आप में शांतनु जी का डर है। शांतनु भाई इतना डरो मत, काय को परेशान हो रहे हो आप? अभी योगी जी की जगह पे किसी मोदी जी की जीवनी लिखने लगना, मसला वो नहीं है। मसला ये पर्सनल ऑन द बुक, नहीं, इट्स नॉट अबाउट द पर्सनल आर्गुमेंट ही नहीं है पर्सनल होने के सिवाय। अरे शांतनु जी, हमारे पास मान लो हमारे पास आर्गुमेंट, आपके पास तो बड़े आर्गुमेंट है। आपको 3 और 7 दिखाई दे रहे थे, आपके आर्गुमेंट तो हमने देख लिए ना, उसी के बाद मैं बोल रहा हूँ। अपने आर्गुमेंट देखा करो, शीशा देख लिया करो एक बार पहले, और धूल कंटेंट पे तो आइए सर, ठीक है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को देखना भी चाहिए कि विपक्ष की कमियां क्या है। लेकिन शांतनु जैसा आदमी अगर कोई ये देखे तो कम से कम इन्हें ये बोलने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए कि साहब ओम प्रकाश राजभर ने कितनी गालियां दी हैं नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, कितनी गालियां दी हैं। उसके बाद हमारे अलायंस पे कोई कमेंट करे। और आज संजय निषाद की जो 2 सीटें इन्होंने छीनी है, लूट करी है, लुटेरे हैं ये लोग। मैं फिर से कहता हूं, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं कि लूट करी है। एक जगह पे उस आदमी का जो क्या नाम मझवा में वो जीता था भोजन भरी थाली से, और उसके बाद दूसरी जगह पे वो रनर अप था कटहरी में, 2500 से हारा था। उसकी 2 सीटों को लूट करके आज ले ली है जी। आज संजय निषाद को इन्होंने बिल्कुल जेजेपी बना दिया, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। तीसरी बात, अभी बटेंगे तो कटेंगे की बात योगी जी कर रहे थे, और इनके उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, कहने लगे कि योगी जी का नारा कोई भाजपा का नारा नहीं, बटेंगे कटेंगे कोई हमारा नारा नहीं, हमारा ऐसा कोई नारा नहीं। तो ये सारी की सारी जो पार्टी के जो अंतर विरोध हैं,
अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान दे तो बेहतर है। हमारे अलायंस में, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे हमारा अलायंस उत्तर प्रदेश का हो, निश्चित तौर पर बातचीत करने में मतभेद होते हैं और वो होंगे भी। जिंदा लोगों में मतभेद होते हैं, मरे हुए लोगों में नहीं होते, डेडवुड में नहीं होते मतभेद। वहां पर तो खाता ना भाई जो चचा मोदी कहे वो सही, ये हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ एक दूसरे की बात रखी जाती है। और एक बात जो अखिलेश यादव जी की आपने कही ना प्रिया, कि क्यों नहीं बन सकते अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकते? क्यों? सारे इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड पार्टनर्स हैं, सब में प्रधानमंत्री के नेता हैं, सब में है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल, कांग्रेस में हमारे यहाँ खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी हैं, वहां तेजस्वी जी हैं, वहां स्टालिन साहब है, वहां हेमंत सोरेन साहब है, शरद पवार जी, तो हम लोग हैं यहाँ पर। तो हम इस तरीके, लेकिन इनके यहाँ पर इनकी हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है कि ये कह सके कि मोदी के अलावा कोई है? कोई भी, कोई किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती। और ये जो आखिरी बात में आपसे, आपने जो पूछा था ना मुझसे कि साहब आप लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक बात का तो उदयवीर जी ने जवाब दे दिया, अलायंस जीतेगा। दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा अलायंस है, जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, वो आप देखें वर्सेज बीजेपी का अलायंस देखें, 37 जगह बीजेपी के जो है बागी खड़े हुए, 37 जगह, याद रखिए। महाराष्ट्र की बात बाद में करेंगे क्योंकि आई वांट टू गेट शांतनु आल्सो टू कम इन, ही हैज अ लॉट टू काउंटर आल्सो, सो शांतनु। See, in the science of argument, we say when people start attacking you personally, mean their argument in fake and vague, and they want to just attack you personally, and that's why I'm seeing this very senior leaders, अंग्रेजी बोल करके यार अपने they are more interested in targeting me personally, बोलने दीजिए ना, rather than, अरे उदयवीर जी ने अभी आपको इतना ज्ञान दिया था शालीनता पे, उसे तो मान लीजिए, अपनी आपस का ज्ञान। आप शालीनता से चुपचाप, आप उदयवीर जी को लाएंगे बीच में? उदयवीर जी ने शालीनता का ज्ञान दिया उदयवीर इज वेटिंग फॉर अ चांस टू कम इन फॉर ओपनिंग, सो यू कुड मेंशन हिम। और शालीनता का ज्ञान दिया था उदयवीर जी ने, पूरा उल्टा। शालीनता का ज्ञान दे रहे थे अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट्स बैक, क्या मोदी ने छीनी नहीं थी पार्टी? 5 मिनट शांतनु को बोलने दीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें मेरा नाम ला रहे हैं भाई, आप बोलो। 5 मिनट पहले उदयवीर जी बोलिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ। 5 मिनट पहले बोलिए भाई, कंटेंट पे आइए। हाँ बोल आ रहा हूँ, 5 मिनट पहले उदयवीर जी शालीनता के प्रोफेसर बने। 5 मिनट पहले MLC उदयवीर जी शालीनता के प्रोफेसर बने हुए थे। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलिए भाई, आप मेरा नाम बोल रहा हूँ, सुनिए, पीछे नेताजी की फोटो लगा के बैठे हैं, अखिलेश जी की फोटो बना के, थोड़ा शालीनता तो रखिए। अभी कुछ दिनों पहले की इस शालीनता का और एग्जांपल, उदयवीर भाई इनके पास कंटेंट नहीं है, कुछ दिनों पहले। अच्छा, आप लेट हिम स्पीक एंड फिनिश। देखिए आउट ऑफ टाइम आल्सो, आप हालत तो शांतनु द लास्ट वर्ड। आप विषय पे आइए ना। ठीक है, हाँ, वो आप वो प्रिया को डिसाइड करना, अपना चैनल खोलिए ना, अपना न्यूज़ के लिए। लेट्स प्रिया डिसाइड, आप मॉडरेट करें। चलिए लेट हिम फिनिश फिजिकल डिबेट। आप इनसे रेडियो में इनसे बुलवा लीजिए ना, अलग से बाइट ले लीजिए, अपनी आवाज से इतनी खुशी है तो उनकी बाइट ले लीजिए। मैं शालीनता की बात करता हूँ, अभी 3 वीक पहले की बात है। सुनील साजन इनके ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, एक चैनल में क्या कहा पता है? एंकर को हंसी दे, हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी केस में चैनल से उठवा लेंगे। झूठ बोल रहा है, मैं भी बैठा था उस डिबेट में, झूठ बोल रहे हैं, वर्बैटिम मैं प्ले कर दूंगा। आधा सेंटेंस है बोलो ना, एग्जैक्टली यही कहा, आधा सेंटेंस है वो। देखिए बीच मैंने में डिबेट किया, आप लोग सड़कों पे भी करते हैं, आप झूठ परोस के नहीं भागते। गुंडागर्दी सड़कों पे भी, झूठ बोलने के अलावा आप इन लोगों ने अलग से बाइट ले ली ना। शांतनु ऑन द इलेक्शन चुनाव कितना आप वो सब बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो आप इलेक्शन चुनाव पे ले जाएंगे। प्रिया एटलीस्ट एक्ट टू लुक आप इतना बायस सामने से मत दिखिए, एक्ट टू लुक एटलीस्ट प्रिटेंड टू लुक मॉडरेट, राइट? ठीक है। और फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा, सुनील साजन ने मुझसे कहा, देखिए हम बातों से भी समझा लेंगे, बातों से नहीं समझेंगे तो हमें और तरीके भी आते हैं। ये शालीनता है समाजवादी पार्टी की। अब ये वोट कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र चुनाव की बात बहुत करी, अबू आजमी ने क्या कहा, भैया 3 MLA हैं, 8 MLA हो गए तो मुसलमानों को कोई कुछ नहीं करता। किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं जो मुसलमानों को कुछ कर दे। ये अखिलेश जी खड़े हैं वहां पे। अभी इनके कल MLA क्या कहते हैं, राइस शेख MLA 5% मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए। महबूब अली क्या कह रहे हैं, MLA अमरोहा से, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, 2027 का चुनाव तो मुस्लिम आबादी से जीत जाए। यूपी चुनाव की बात करिए ना, ये यूपी के हैं जी। महबूब अली MLA है समाजवादी पार्टी के अमरोहा का। महबूब अली MLA है समाजवादी पार्टी का। ये सारा कंटेंट है ना तुम्हारा, चूंकि बीजेपी ने कहा है ना मुस्लिम आबादी बढ़ रही है,
मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मैं मुस्लिम जवाब आबादी दूंगा प्रिया जी लास्ट। चुनाव जीतेंगे। तो ये तो दैट्स द वे दे विल ट्राई टू विन द इलेक्शन, कि मैं हाँ। मुस्लिम वोट ले लूंगा, एक मुश्त ले लूंगा, 90% मिला है मुझे, 4 सीट दी थी मैंने केवल मुसलमानों को और मुझे 90% वोट मिल गया, तो अब मैं क्या 5% रिजर्वेशन मांगूंगा, कहूंगा उनकी आबादी बढ़ रही है, कहूंगा कोई ये माइका झूठ है, मुसलमानों को कभी हाथ नहीं नहीं बोला लगा अखिलेश सकता। जी ने ये बात। तो ये चल। दैट्स द You show नैरेटिव वी me. हैव टू सी। You He show said me. the candidate ने बोला था, अखिलेश खड़े थे वहां पे। हाँ, अखिलेश तो खड़े थे, बिल्कुल किसने कहा अखिलेश खड़े 5% रिजर्वेशन? थे। राइट शेख में अखिलेश जी ने कब कहा? आपके कैंडिडेट कहा ने कहा अखिलेश था, जी? देखिए देखिए बाइट देखिए आप कब कहा? यूपी बताओ। इलेक्शन में इतना उलझ गए हैं कि आप नहीं, म्यूजिक की कवरेज देख लीजिए, म्यूजिक की कवरेज है उसमें। अखिलेश जी का बाइट दिखाओ, आधा आधा बाइट बोल के आप यहाँ कंफ्यूजन अखिलेश फैलाने जी का की बाइट कोशिश कह रहा हूँ, करते ठीक आपके हो। है। एमएलए हैं, He's- आपके एक्चुअली एमएलए हैं, राइट आप शेख जो है उनकी मिस बाइट कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ठीक। कैंपेन के लिए रखे गए हो, ज्यादा So सारा I think ज्ञान this तो पीछे debate किताबें actually रखी हैं। shows us जो पीछे exactly how किताबें we रखी think हैं the ये खाली UP मिस election इन्फॉर्मेशन campaign कैंपेन है। के लिए So है। Devi ji, I will आपको बहुत टाइम मिला, now I will have to actually we are out of time, so I will call you all again, including Shantanu. You'll get more time next time, but thank you so much for this Hopefully. conversation. Thank you. Thank you, Rajput ji. Thank you.